Okay. So talking about Bangladesh, we have already studied this before, that Bangladesh, it's a new country which was formed in 1971. So in 1947, when we go back after independence, 1947, India, it got divided into two countries, that is India and Pakistan. So talking about the West Pakistan today, yes, that was one Pakistan, or दूसरा Pakistan जो था was East Pakistan, which we call it Bangladesh today. तो 1947 में दो पाकिस्तान बने थे, एक था वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा था ईस्ट पाकिस्तान. तो वो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो जाता है इन द ईयर 1971, as per which this East Pakistan, it came to be known as Bangladesh then. So Bangladesh was basically a new country which was formed in the year 1971. Apart from that, talking about our relations with Bangladesh, we share a very good relation with Bangladesh. Yes, we have a lot of border issues with Bangladesh. Bangladesh जब ही नया नया देश बना था in the year 1971, there was a lot of poverty, there was a lot of political instability in Bangladesh, जिसके वजह से बहुत सारे बांग्लादेशी बांग्लादेश छोड़ के इंडिया की बॉर्डर्स को क्रॉस करके वो इंडिया में घुस रहे थे. So we had a lot of refugees all the way from Bangladesh who came down to India. ये रेफ्यूजीज आज के डेट में भी वो इंडिया में रहते हैं, क्योंकि लिए हम इंडियंस ने इन जितने भी रेफ्यूजीज थे उनको हमने फिर आगे जाके एक्सेप्ट किया था. मोस्ट ऑफ दीज रेफ्यूजीज दे सेटल्ड डाउन इन आसाम रीजन. तो आसाम जो अपना बॉर्डर्स शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, तो ये बहुत सारे रेफ्यूजीज बांग्लादेश छोड़ के आसाम में जाया करते थे. तो हमने उन सारे रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट किया, उनको यहाँ पे रहने दिया है इतने सालों तक. सो दैट इज एट अ वेरी गुड नोट दैट इंडिया एंडेड अप विथ. इंडियंस ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने ये बोला, इंडिया की गवर्नमेंट ने ये बोला, वन सेकेंड. Okay. So, talking about Bangladesh, we had many of the refugees from Bangladesh who entered into India. Thereafter, the Indian government, they said about these refugees that Bangladesh initially, when the Britishers were there in India, was a part of India. तो ये जितने भी refugees बांग्लादेश से आ रहे हैं वो initially देखा जाए तो इंडिया को ही belong करते थे. And that is why we started accepting them, and we see these refugees living in India even till date. Apart from Bangladesh, we have the next country, that's Sri Lanka. So again, talking about Sri Lanka, since 1985, we see that there was a lot of political instability in Sri Lanka also. श्रीलंका की बात करें, यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जरूर था. श्रीलंका जो था, यहाँ पे दो ग्रुप्स फॉर्म हो चुके थे. एक थे तमिलियंस जो श्रीलंका में रहते थे,
और उसके अलावा थी श्रीलंका की सरकार। इन दोनों के बीच में एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट था, फॉर विच दे डिमांडेड दैट श्रीलंका शुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये जो ग्रुप के बीच में डिवीजन था, ये चाहते थे कि श्रीलंका इस देश का दो बंटवारा हो जाए। So within in Sri Lanka, there was so much of conflict that they wanted the country to be divided into two countries. Thankfully, India, it went into this matter. India ये मैटर में स्टेप फॉरवर्ड करता है। श्रीलंका में जो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था, उसमें इंडिया की सरकार बहुत उनकी मदद करती है। They try to patch up the differences in between the Tamilians and the Sri Lankan government, because of which we see Sri Lanka as one country till date. तो आज के डेट में हम लोग श्रीलंका को जो एक देश की तरह देखते हैं। दिस ऑल हैपेंड इन द ईयर 1985। थैंकफुलनेस टू द इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया की सरकार ने उनकी मदद की थी ये पूरे डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। In today's date, we share a very good relation with Sri Lanka too, but unfortunately, it is China who is financially dominating over Sri Lanka. Okay. Next, we shall talk about our relation in between India and Nepal. तो इंडिया और नेपाल की बात करें, especially when we talk about this country of Nepal, I want you to look at the map of Nepal. Nepal, it shares its borders with China in the north, and towards the south, we see that Nepal is sharing its border with India. तो नेपाल को अगर देखा जाए, ये एक लैंडलॉक देश है जो दोनों साइड से कंट्रीज से घिरा हुआ है। And because of that, we see that Nepal, it is constantly in between China and India's political disputes. अभी होता क्या है यहाँ पे? At an initial stage, we had a very good relation with Nepal. In fact, इंडिया और नेपाल की सरकार के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसको हम इंडो नेपालीज अग्रीमेंट बोलते हैं। This friendship treaty was signed in the year 1950। तो 1950 में ये जो इंडो नेपाली ट्रीटी साइन हुआ था, इसके वजह से नेपाल के जो लोग हैं, नेपाल के जो सिटीजन्स हैं, उनको अलाउ किया गया था दैट दे कैन कम डाउन इन इंडिया इवन विदाउट अ पासपोर्ट, इवन विदाउट अ वीजा। वो इंडिया में आ सकते हैं। एंड व्हेन दे कम डाउन टू इंडिया, दे कैन स्टडी हियर इन इंडिया, दे कैन गेट ग्रेजुएटेड हियर इन इंडिया, और वो चाहे तो इंडिया में आके फ्री गवर्नमेंट जॉब्स भी वो ऑप्ट कर सकते हैं। So they were allowed to even do their business in India. They were allowed to even join the government offices in India and earn out of it. So India and Nepal, they shared a very good relation in the past. Talking about the current affairs, which is not mentioned in your textbook, in today's date, we have a lot of political issues with Nepal also, because Nepal somewhere it is being again dominated by China. तो नेपाल के साथ हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशंस है। आज के डेट में कुछ अलग ही चल रहा है, wherein we see that yeah, we are facing some issues with China then. Next, we'll get on to the relation in between India and Bhutan. So talking about the relation in between India and Bhutan, we share a very good relation with Bhutan. Talking about Bhutan as a country, it's an amazing country. It's a wonderful country. अगेन लैंडलॉक्ड, चाइना और इंडिया के साथ वो अपनी बॉर्डर्स शेयर करता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, देन भूटान ऑथेंटिकली स्पीकिंग, कल्चरली स्पीकिंग, इट्स एन अमेजिंग नेशन। इट हैज अ माइनस कार्बन फुटप्रिंट, एंड अबव ऑल इट्स अ पोल्यूशन फ्री कंट्री। हाइडल पावर इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है, इट इज बीन प्रोड्यूस्ड एट अ वेरी लार्ज स्केल इन भूटान। इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलता है भूटान से इसके वजह से, एंड वी फॉर श्योर शेयर अ वेरी गुड रिलेशन विद भूटान। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हम देखते हैं कि इंडिया ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर किया था कि अगर भूटान के ऊपर कोई हमला होता है, तो इंडिया जाके भूटान की मदद करेगा। भूटान एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट हैज अ वेरी गुड एजुकेशन सिस्टम, लेकिन जब भी भूटान एक वीक देश था, तभी भूटान की सरकार को इंडिया की सरकार ने मदद की थी उनकी पूरी एजुकेशन सिस्टम चलाने में। अपार्ट फ्रॉम भूटान, नाउ वी विल लुक एट आवर रिलेशन विद म्यांमार। So everybody knows that during the times of Britishers, Myanmar was called as Burma. आज के डेट में हम बर्मा को म्यांमार बोलते हैं। So talking about Myanmar,
we see that Myanmar is actually India's door towards the southeast countries. तो अगर हमें थाईलैंड जाना है, कंबोडिया जाना है या हमें लाओस जाना है, तो इन देशों में एंटर करने के लिए हमें म्यांमार को क्रॉस करना पड़ता है। So that is the reason why we see that the Indian government, इंडिया की जो सरकार है, वो अपने रेल रूट्स, अपने रोड रूट्स को ज्यादा मजबूत कर रही है, डेवलप कर रही है इंडिया और म्यांमार के बीच में। So the borders that we share with Myanmar, वो बॉर्डर एरिया से पास होने वाले रेलवेज और रोडवेज को इंडिया की सरकार डेवलप कर रही है, उसको फंड कर रही है ताकि ट्रेड अच्छा हो, ताकि दोनों रीजन्स और कंट्रीज के बीच में वापस इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा हो। We import a lot of natural gas from Myanmar, and just because we develop good relations with the Southeast Asian countries, we are trying to help Myanmar again. हमें ये चीज पता होनी चाहिए दैट म्यांमार वाज अगेन पॉलिटिकली वेरी इनस्टेबल। वहां पे डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए देयर वाज दिस लेडी, हर नेम इज ओंग सांग यू की। तो ओंग सांग यू की ये जो लेडी थी, ये वहां की लीडर थी जिसको नोबेल प्राइज दिया गया था म्यांमार में एक डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए। इसके पहले वहां पे एक मिलिट्री गवर्नमेंट थी, वहां पे डिक्टेटरशिप था, जो तोड़ के वहां पे डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश किया गया है। Okay, so that's all about India's relation with Myanmar. We'll move ahead with India's relation with Maldives. So, again, for your information, we share a very good relation with Maldives too. Talking about Maldives as a country, then India is sharing its friendly relations with Maldives. Above all, मालदीव्स की बात करें तो इंडिया के काफी मिलिट्री बेस, काफी कम्युनिकेशन सेंटर्स वहां पे एस्टेब्लिश्ड है। In 2006, we also shared a military field which we started in the country itself. And talking about our trade relations, we share a very good trade relations with Maldives again. So historically speaking, tourism की बात करें, research की बात करें, space की बात करें, तो इन सब चीजों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इंडिया पैसे देता है मालदीव्स को। And more than that, in order to fight against terrorism, India and Maldives they work hand in hand. Fine. We will now understand our relation with America. Talking about America, it's a capitalist country, it's a democratic country. So India अपना कैसा relation share करता है with America, this is now what we are going to understand. We should not forget this, that talking about Indians, जब भी हम लोग इंडिया की बात करें, we see that we had been helped a lot by America. इंडिया ने अमेरिका ने इंडिया की बहुत मदद की थी 1947 के बाद इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए। उसके अलावा वी हैड अ लॉट ऑफ इंडियंस हु यूज्ड टू माइग्रेट अवे टू अमेरिका, वो अमेरिका में जाके सेटल हो जाते थे। तो ये इंडियंस जो अमेरिका में जाके एनआरआईज जो अमेरिका में जाके सेटल होते हैं, ये एनआरआईज का सोशल स्टेटस, उनका कल्चरल स्टेटस, उनका इकोनॉमिक स्टेटस प्रिजर्व करने का हक भी अमेरिका ने लिया था। दे ट्रीटेड अस इंडियंस वेरी वेल व्हेन वी आल्सो माइग्रेटेड टू देयर कंट्री। टॉकिंग अबाउट कोल्ड वॉर, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है that after World War II, when there was Cold War, at this point of time, India, it had not got into any military alliance with America, but rather India, it stayed neutral. India neutral रहता है और उसके अलावा वो चाहता है कि वो अमेरिका की मदद से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पूरे वर्ल्ड में वो स्टार्ट कर सके। Apart from that, we shared very good trade relations with America. More than that, America एक बहुत ही एडवांस्ड देश है, तो इकोनॉमिकली वो इंडिया की मदद भी करता है। We see that there were some nuclear tests which were being done in the year 1998 in India. तो 1998 में जब भी इंडिया में न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे थे, व्हेन वी हैड अटल बिहारी वाजपेयी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो अमेरिका भड़क जाता है इंडिया से कि उसने न्यूक्लियर टेस्टिंग क्यों किया। उसके बाद इंडिया पे बहुत सारे फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए गए थे। इंडिया को पॉलिटिकल फाइनेंशियल पेनल्टी पे करना पड़ा था क्योंकि उसने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे इंडिया में। एंड उसके बाद उसको अमेरिका के साथ एक अग्रीमेंट साइन करना पड़ा, which is called as the civil nuclear agreement. It was an agreement which was signed with USA
इन द ईयर 2005 साइन किया गया था। अमेरिका की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने 2008 में उसको एक्सेप्ट किया वो अग्रीमेंट को। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया और अमेरिका के बीच में ये न्यूक्लियर टेस्टिंग के कितने टेस्ट होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, उसके रिलेटेड फिर सिग्नेचर्स हुए थे। ओके, so that's about India's relation with America. Next, we'll move down to Russia. So when we talk about Russia, कोल्ड वॉर के टाइम पे, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, टॉकिंग अबाउट रशिया, रशिया के साथ दूसरी और 14 कंट्रीज थी। सो इंक्लूडिंग रशिया देयर वर 15 नेशंस टुगेदर। ये 15 देश जब भी साथ में आते हैं वर्ल्ड वॉर टू के बाद, तो उसको हम सोवियत यूनियन बोलते हैं। तो ये जो सोवियत यूनियन था, ये सोवियत यूनियन टूट जाता है बाय द टाइम इट इज 1971, और ये 15 देश आजाद हो जाते हैं। रशिया उनमें से एक देश था जो ये 14 देशों पे रूल करता था। सो टॉकिंग अबाउट रशिया, इट बिकम्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री बाय द टाइम इट इज 1971। सो इंडिया और रशिया के बीच में हमेशा से अच्छे रिलेशंस रहे हैं। इनफैक्ट वी शुड नॉट फॉरगेट दिस थैंकफुलनेस ऑफ रशिया that at one point of time after 1947, America and China together they had a plan from the Indian Ocean to attack over India. वो टाइम पे इंडिया की मदद रशिया ने की थी। So yes, we have signed a friendship treaty with Russia. It is called as the Soviet Indo-Soviet Treaty of Friendship, wherein we cooperate with each other. Russia हमें military support भी देता है, technological support भी देता है. There is a lot of trade relation in between India and Russia again. So that's all our relation with India and Russia that we share. Next, we'll move ahead with India and its relation with the European countries. Okay, so there are some questions coming up. I'll just quickly go through it. Okay. Okay. So there is a comment coming up that which countries they have very good relations with America rather than the other countries. So talking about America, it is a diplomatic nation. See, very good relations. These are diplomatic friendships. We should not forget this. थ्रूआउट द वर्ल्ड कंट्रीज के साथ जो रिलेशंस मेंटेन किए जाते हैं, ये डिप्लोमेटिक फ्रेंडशिप्स होती है। दीज आर पॉलिटिकल फ्रेंडशिप्स। ओके, इट्स so talking about America, we had good relations with Russia first, and then we had good relations with America. इसके बाद आज के डेट में अमेरिका के साथ भी हमारे उतने अच्छे ही रिलेशंस हैं जितने हमारे रशिया के साथ है। सो इंडिया हैज ऑलवेज रिमेन न्यूट्रल इन दैट केस। नाउ इट पॉलिटिकली डिपेंड्स कि इंडिया कितना कौन से देश से क्या इंपोर्ट करता है। द वॉर इज ओवर द रिसोर्सेज। हमें जिस देश से सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हम इंपोर्ट करते हैं, उस देश के साथ हमें कितने अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने हैं, और उस देश का रिलेशन अमेरिका और रशिया के साथ कैसा है, इवन दैट डिपेंड्स अगेन। सो देयर वाज अ रीसेंट सिनेरियो अबाउट अजरबैजान, अगर पता है तो जाके गूगल करना, वेयर इन इंडिया हैड टू सपोर्ट अजरबैजान फॉर सम ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस अगेन, क्योंकि लिए we have a lot of natural gas coming up from Azerbaijan again. Okay, so yes, it is Israel also. Fine. We'll get on to the next part now, talking about India and its relations that India shares with the European countries. ये part बहुत ही ज़्यादा simple है. So here you can see two countries, that is Germany and France. Okay. Talking about Germany and France as two nations, Germany and France, both of them, they have invested a lot in India. उन्होंने इंडिया में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट किस चीज में किया है? टेक्नोलॉजी में, और उसके अलावा एजुकेशन में भी। So talking about various engineering colleges which you see in India,
आईआईटीज जो तुम देखते हो, आईआईटी मुंबई और आईआईटी खड़गपुर, ये सारी जो आईआईटीज है, एक्चुअली इंडिया में आईआईटीज खोलने का काम जर्मनी, फ्रांस, इन देशों ने किया है। इंडिया को वेपन्स सप्लाई करने का, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने का जो पूरा काम धाम किया था, ये यूरोपियन कंट्रीज ने किया है, स्पेशली जर्मनी एंड फ्रांस अगेन। Above all, when we talk about India, it wants to establish a free trade policy with all the European countries. So we have signed a lot of treaties with the European countries in respect to the field of climate change, then in respect to the field of clean energy, for defense production, for disaster management, for security in airspace and terrorism. तो इन सब देशों के बीच में और इंडिया के बीच में ये सारे ट्रीटीज वापस साइन हुए हैं। Okay. Next, we'll move ahead with the other part, that is India sharing its relations with the various African countries. तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो इसमें 54 देश आते हैं। टॉकिंग अबाउट अफ्रीका, इट हैज 54 कंट्रीज इन एंड ऑल। ये 54 कंट्रीज के साथ वी आर अगेन शेयरिंग अ वेरी गुड रिलेशन। Talking about the resources, we find a lot of resources from these countries. Again, we see that development is being done in Africa. देखा जाए तो अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जो काफी बैकवर्ड हैं। इन बैकवर्ड देशों को ऊपर लाने के लिए इंडिया उनकी मदद करता है, इन द स्ट्रीम ऑफ टेक्नोलॉजी, इन द स्ट्रीम ऑफ एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड एक्सेट्रा। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं अफ्रीका में जो बहुत ही रिच है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज इजिप्ट, नाइजीरिया, एंगोला एंड ऑल्सो सुडान। तो इन देशों से हमें बहुत सारा एनर्जी सप्लाई मिलता है। So because of this, India shares a very good relation even with them. We import a lot of things from there. Again, ग्लोबल इश्यूज के लिए इंडिया के साथ ये कंट्रीज काम करती है, सच एज क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, privacy, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, वील मूव अहेड विद द इंडो पैसिफिक एरिया। इंडो पैसिफिक एरिया की बात करें तो यहाँ पे कंट्रीज आती हैं सच एज जापान, सच एज न्यूजीलैंड, सच एज ऑस्ट्रेलिया। So we have various southeastern nations with whom India shares again good relations. We share very good relations with Japan. We share very good relation with Australia, even with New Zealand. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की इनफैक्ट बात करें तो ब्रिटेन की क्वीन अभी भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की क्वीन है, constitutionally speaking. So we share very good relations with these countries. We have again signed a lot many treaties in between these countries, especially India और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रीटी साइन हुआ है जहां पे वो एक दूसरे को सोशल सिक्योरिटी देते हैं। They try to remove the criminals from the countries who run away from one country to another. They are completely against smuggling of drugs. They're against terrorism. They try to preserve art and culture. So there are such treaties which have been signed in between India and Australia. Talking about Japan, we are importing a lot of things from Japan. जापान से हमें इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलता है, एटॉमिक एनर्जी का सपोर्ट मिलता है और रेलवेज बनाने का सपोर्ट मिलता है। इनफैक्ट फ्यू years back we see that India had signed an agreement with Japan wherein Japan was providing us with the railway compartments and also with the एयरलाइंस का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था बनाने के लिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। ओके, next, we'll get on to India and its relations with the Southeast. So, talking about the Far East, Southeast countries, we have Philippines, Thailand, Myanmar, Vietnam, Singapore, Malaysia, Indonesia, Laos, Cambodia, Brunei. तो ये सारी कंट्रीज है जिसके साथ इंडिया बहुत अच्छे रिलेशंस मेंटेन करता है। देयर इज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, एनी कंट्री कैन ट्रेड विद एनी कंट्री इन इंडिया। तो इंडिया इन कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड करता है। देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रेड एक्टिविटी विच हैपेंस ओवर हियर। इंडिया इट एक्सपोर्ट्स अ लॉट टू दीज कंट्रीज। इन कंपैरिजन टू इंडिया ये कंट्रीज की करेंसी काफी वीक भी है। So here we see that India is sharing its cordial relations with all the southeast countries. इसके लिए हमने देखा था कि इंडिया ने अग्रीमेंट साइन किया था और एक नया फॉरेन कानून बनाया था which was called as लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जहां पे हम इन देशों को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। Next, at the end, we will understand India's relation with West Asia.
So talking about West Asia, यहाँ पे हम Middle East countries की बात करते हैं, wherein we talk about Iran, we talk about Bahrain, we talk about Kuwait, we talk about Saudi Arabia, and we talk about UAE, that is Dubai. So in countries के साथ again we share a very good relation. We get all the oil supply, we get all the natural gas supply from these countries. इसके अलावा इज़राइल की बात करें, इज़राइल के साथ हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। व्हाई? क्योंकि लिए हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाला इज़राइल है एग्रीकल्चर के लिए, डिफेंस के लिए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने वाला वापस इज़राइल है, और इज़राइल में रहने वाले जो इंडियंस हैं, उनको जॉब्स और बिज़नेसेस खोलना वहाँ पे पूरी तरह से अलाउड है। दिस इज़ द लिबर्टी व्हिच हैज़ बीन गिवन बाय द इज़राइल गवर्नमेंट। सो वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू इज़राइल, क्योंकि लिए इंडिया का बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी इट कम्स फ्रॉम इज़राइल। उसके अलावा इंडिया इट शेयर्स वेरी गुड फॉरेन रिलेशंस with the rest of the countries in the world. In fact, talking about India, India it never got into nuclear arms race pehle. It tries to solve the global issues, the international issues by mutual understanding. In fact, it has been one of those countries which has never attacked any other country in the world until and unless there has been some border issues which India has faced so far. Okay. So if you have any queries for this chapter ahead, then do let me know. यहाँ पे टेक्स्ट बुक के एंड में जो क्वेश्चंस दिए हैं, यू आर फर्स्ट सपोज टू स्टडी ऑल दीज क्वेश्चंस व्हिच आर देयर एट द एंड ऑफ योर chapter, and then you can study the rest of it. Okay. In case if you have any queries still here, you people can ask, or else we'll move ahead with the next chapter today. Okay. So just give me a minute or two. We'll begin with the other chapter now. Okay. We'll begin with the next chapter, that is international problems. Okay. As I have told you in the previous classes also, talking about international problems. mm,
As I've told you in the previous classes, talking about the world map, we have almost 196 countries which are there on the world map in today's date. 196 countries which are there on the world map in today's date. We see that these 196 countries, they are very different from each other. These countries, they do face many issues. इंडिया की बात करें, इंडिया इट हैज मेड सर्टेन फॉरेन पॉलिसीज. इंडिया ने काफी ऐसे इंटरनेशनल लॉज बनाए हैं. उसकी डिफेंस सिस्टम ऐसी है कि वो ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर पाए. बट थ्रू आउट द वर्ल्ड देर आर सम कॉमन प्रॉब्लम्स विच एवरी कंट्री फेसेस. पूरे वर्ल्ड में ऐसे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है जो सारे देश एक साथ फेस कर रहे हैं. These are called as the international problems. Now, which are these problems exactly? There is a problem of human rights. There is problem of environment change. There is a problem of terrorism. So these are some common problems which every country in the world is facing. Human rights से हम शुरू करेंगे कि human rights exactly क्या है, वो कैसे एक देश को अफेक्ट करते हैं, इसका सल्यूशन इंटरनेशनली कैसे लाया गया था by United Nations of Organization. That is what we are going to study next. Okay, so we'll begin with what is exactly human rights. Human rights exactly होता क्या है? Talking about human rights, ये जो कॉन्सेप्ट था ह्यूमन राइट्स का, ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया. क्यों? क्योंकि लिए जब ये वर्ल्ड वॉर टू खत्म होता है, बाय द टाइम वी हैड वर्ल्ड वॉर टू कमिंग टू एन एंड, we had more than 60 million people who lost their lives. 60 million से ज्यादा लोग अपनी जानें गंवा चुके थे. उससे भी ज्यादा लोग हम देखते हैं कि जर्मनी में मर जाते हैं, wherein Adolf Hitler he is killing away the Jews. So worldwide, after World War II, we see that during the World War II especially, हम देखते हैं कि वो टाइम पे सिर्फ सोल्जर्स वो वर्ल्ड वॉर टू में लड़ नहीं रहे थे, लेकिन सोल्जर्स के अलावा नॉर्मल सिविलियंस जो देश की आम जनता थी, वो भी ये वॉर में लड़ रही थी. एंड देयर वर मेनी सिविलियंस हु आल्सो लॉस्ट देयर लाइव्स. There were pregnant women, there were small children, there were senior citizens, many of them who got into the clutches of World War II, and because of which they had been affected, their rights had been affected, their lives had been affected. इस चीज के बारे में फिर बहुत बातचीत होने लगी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में. और वो टाइम पे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के हेड ने ये बोला कि अगर हमें आता नहीं है पीसफुली अगर ये प्लैनेट पे रहना, देन वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द थर्ड वर्ल्ड वॉर एंड दैट विल डिवास्टेट द होल ऑफ द वर्ल्ड. ह्यूमंस को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए. एवरी इंडिविजुअल हु इज बोर्न ऑन दिस अर्थ, हर एक इंसान जो ये वर्ल्ड में वो पैदा होता है, चाहे वो किसी भी देश का क्यों ना हो, he has natural rights which are there with him. ये उसका जन्म सिद्ध हक है. By birth, that human, he has the right to freedom. उसे अपनी जिंदगी आजादी से रहना, उसको ये उसका अधिकार है, because he is born as a human on this planet. Nobody can stop him to live his life. He has the right to equality. वो एक समान ट्रीट होना चाहिए as how the other humans are on this planet. So these are some human rights. ह्यूमन राइट्स की बात बहुत पहले होती है अमेरिका में और फिर होता है फ्रांस में. अमेरिका वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. तो अमेरिका ने एक टाइम पे ह्यूमन राइट्स की बात की थी जब भी वहां पे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था. And we had George Washington who had prepared the very first constitution talking about democracy in America. उसके बाद आया फ्रांस. सो फ्रांस में होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहां पे राजा और रानी को अपने पोस्ट से निकाल दिया गया. द किंगशिप केम टू एन एंड इन फ्रांस एंड इंस्टेड ऑफ दैट वी हैड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट व्हिच वाज फॉर्म्ड इन फ्रांस. जब भी फ्रांस एक देश बनता है, एक सरकार जब भी फ्रांस में बैठती है, तो उन्होंने अपना भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वेर इन दे टॉक अबाउट द थ्री राइट्स विच एवरी ह्यूमन इज सपोज टू हैव.
टॉकिंग अबाउट लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये चीजें क्या है, ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से सीखी है। और फिर ये पूरे वर्ल्ड को समझी कि व्हाट इज इक्वालिटी, व्हाट इज लिबर्टी, व्हाट इज फ्रेटर्निटी एंड व्हाट इज जस्टिस. So all these things we have understood from the French Revolution. So the idea of democracy, it comes from American War of Independence, and the idea of liberty, equality, fraternity and justice, it comes from the French Revolution. ये प्रिंसिपल्स को आगे जाके बहुत सारी कंट्रीज एक्सेप्ट करती है, इंक्लूडिंग इंडिया. एंड व्हेन दीज कंट्रीज दे स्टार्टेड फॉर्मिंग देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड गवर्नमेंट्स, इन डेमोक्रेटिक देशों ने फिर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाला, जिसके तहत हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं. Okay. So that's all for today's lecture. In case if you have any queries, you can stay behind and rest of the people can leave.